السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سندھی ٹیچر۔ میں آپ کو بنیادی سندھی، بیسک سندھی، سٹارٹنگ سندھی، سندھی قاعدے الف ب سے پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا ہے کلاس 3 ٹو کلاس 10۔ روزانہ ایک چپٹر پڑھیں گے، اس کا مکمل اردو ترجمہ کریں گے۔ اس میں جو بھی ایکسرسائزز ہوں گے، کویشچن آنسر، الفاظ معنی، الفاظ جملے جو بھی ہوں گے وہ ساتھ ساتھ میں سولو کرتے جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے کلاس 3، کلاس 4، کلاس 5، کلاس 6 ترتیب سے کمپلیٹ کر دیے ہیں، جن کے الگ سے پلے لسٹ بنے ہوئے ہیں، آپ اپنی کلاس کے مطابق جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے سٹارٹ کیا ہے کلاس 7 سے ترتیب سے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کلاس 7 میں چیپٹر 16 کمپلیٹ کر دیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر 17، جسے سندھی میں سبق 17 پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس چیپٹر کا ٹائٹل ہے مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ حالن وارو۔ یہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام مخدوم نوح ہے، اور یہ حالہ کے یعنی کہ حالہ میں ان کا درگاہ مبارک ہے۔ حالہ والے ہیں، وارو کا مطلب ہوتا ہے وارو والے، حالن وارے مطلب حالہ والے ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ پنجے وقت جو ہک وڈو عالم کامل درویش تھی گزریو آہیں۔ مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بڑے عالم اور کامل درویش کا مطلب ہوتا ہے مکمل بزرگ گزرے ہیں۔ پنجی کا مطلب ہوتا ہے اپنے، وڈو کا مطلب ہوتا ہے بڑے، سندس درگاہ حالہ نوامہ آہیں، آپ کا درگاہ اعلیٰ نوامہ آہیں کا مطلب ہوتا ہے حالہ ایک شہر کا نام ہے، اور نواں کا مطلب ہوتا ہے نئے، یعنی کہ نئے حالہ میں ہے آپ کا درگاہ مبارک جو ہے نئے حالہ شہر میں ہے۔ شاید پرانا بھی ایک اعلیٰ شہر ہوگا، اب نیا جو ہے اس میں ہے آپ کا درگاہ مبارک، یہ بتا رہے ہیں۔ مخدوم صاحب، یہ ان کے درگاہ مبارک کی ایک پکچر ہے۔ مخدوم صاحب جو اصل نالو لطف اللہ ہو، مخدوم صاحب کا اصل نام لطف اللہ تھا۔ این سندس والد جو نالو مخدوم نعمت اللہ ہو، اور آپ کے والد کا نام مخدوم نعمت اللہ تھا۔ سندس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے۔ یہ سن 911 ہجری ماں جاؤ ہو، یہ سال جو ہے، ہی کا مطلب ہوتا ہے یہ، سن کا مطلب ہوتا ہے سال، یہ سال 911 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جاؤ کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا۔ عام روایت آہیں، عام روایت ہے، آہے کا مطلب ہوتا ہے بڑیے ہے۔ تا مخدوم صاحب جے والد کے ہک اللہ وارے فقیر، عام روایت ہے کہ مخدوم صاحب کے والد کو ایک اللہ والے فقیر، اللہ وارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ والے فقیر، نو ہوتیانی جی دعا سا ہی فرزند عطا تیو ہو۔ اللہ والا فقیر جس کا نام تھا نو ہوتیانی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نو ہوتیانی کی دعا سے ہی فرزند اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یعنی کہ جو حضرت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے والد کو ایک نوح ہوتیانی نام کے اللہ والے فقیر نے دعا دی تھی کہ اللہ ان کو فرزند عطا کرے۔ ان فقیر جی ای وصیت موجب مخدوم نعمت اللہ پنجے پٹ کے نوح جے نالے سا سڑیو۔ اس فقیر کی ہی وصیت کے مطابق، ہی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی ہی، وصیت کا مطلب وصیت ہی ہوتا ہے، موجب کا مطلب ہوتا ہے مطابق۔ مخدوم نعمت اللہ یعنی کہ حضرت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ کے والد مخدوم نعمت اللہ علیہ نے پنجے پٹ یعنی کہ اپنے بیٹے کو نوح کے نام سے پکارا، جیسا ہی مشہور تیویو، جس سے یہ مشہور بھی ہو گئے مخدوم نوح کے نام سے، جبکہ ان کا ریئل نام جو تھا نعمت اللہ تھا۔ مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ شروعاتی تعلیم ہک کامل این نیک استاد مخدوم عربی وٹاں حاصل کئی۔ مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ نے شروعاتی تعلیم مطلب ابتدائی تعلیم، ہک کامل مطلب ایک مکمل، اور آئیں کا مطلب ہوتا ہے اور، نیک استاد مخدوم عربی جن کا نام تھا، ان کے استاد کا نام تھا مخدوم عربی، ان کی یہاں سے اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وٹاں کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اللہ تعالیٰ ہن کے ڈاڈو ذہن این فہم عطا کیو ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ذہن کا مطلب ہوتا ہے ذہین، این فہم کا مطلب ہوتا ہے عقل، ذہین اور عقل
عطا کیا تھا۔ 54 تا چوॾहं वरियनि जी उमिरि मां इहो वॾे इल्म ऐं फज़ल जो साहब बटिजी वियो। कहते हैं कि 54 का मतलब होता है कहते हैं कि 14 वरियन का मतलब होता है 14 साल की उम्र में ये बड़े इल्म और फज़ल के साहब बन गए थे, साहिब फ़ज़ल बन गए थे, सॉरी, बड़े इल्म वाले और साहिब फ़ज़ल बन गए थे। बटजी हुए का मतलब होता है बन गए थे। मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह नंढे कुंड पाकिस्तान एंड हिंद जो पहिरियों आलिम हो। मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह बरेसगीर, नंढे कुंड का मतलब होता है बरेसगीर, पाक व हिंद के पहले आलिम थे। जंहिं फ़ारसी ज़बान मां कुरान मजीद जो तर्जुमो कयो। जंहिं का मतलब होता है जिसने फ़ारसी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया। उहो तर्जुमो हाणे छापियो बि वियो आहे। वो तर्जुमा अब जो है शाया भी हो चुका है और छापा भी जा चुका है। हाणे का मतलब होता है अब, छापियो का मतलब होता है छापना या शाया करना। मखदूम साहब जा थोड़ा सिंधी बेत बि मिलिया आहिनि। मखदूम साहब के तोड़े से जो है, तोड़े का मतलब होता है कुछ, मखदूम साहब के कुछ सिंधी बेत भी यानी कि सिंधी नज़म भी मिले हैं। जिन मां पतो पवे तो था हूँ वड्डो शायर पण हो। जिससे मालूम होता है, पतो का मतलब होता है मालूम होना, जिससे मालूम होता है कि वो बड़े शायर भी थे। पण का मतलब होता है बे है चोटिए भी। हिन बुज़ुर्ग दीन इस्लाम जी तबलीग लाइ पंहिंजनि ख़लीफ़नि के सिंध जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि मां पकेड़े छॾियो हो। इस बुज़ुर्ग ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपने खलीफ़ों, पंहिंजनि का मतलब होता है अपने खलीफ़ों को सिंध के मुख़्तलिफ़ हिस्सों में फैला दिया था। पकड़े छॾियो हो का मतलब होता है फैला दिया था। संदस मुरीदनि मां केतिराई करामत ऐं विलायत जा साहब थी गुज़रिया आहिनि। आपके मुरीदों में कितने ही साहिब करामात और साहिब विलायात गुज़र चुके हैं। गुज़रिया आहिन का मतलब होता है गुज़र चुके हैं। मखदूम नूह 1998 हिजरी में वफ़ात कई। मखदूम नूह साहब रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने 1998 हिजरी में वफ़ात पाई। कई का मतलब होता है वफ़ात पाई। संदस जिस्म के दरिया जे पाइण सबब ब फेरा संदस मज़ार मां आपके जिस्म को दरिया के सैलाब आने की वजह से 2 मरतबा मज़ार में बाहर कढ़े, 2 मरतबा जो है आपके मज़ार से आपके जिस्म को बाहर निकाला गया, क्योंकि दरिया के पानी में सैलाब आ गया था। तो आपका मज़ार मुबारक वहाँ से करीब था, तो उस वजह से आपके जिस्म मुबारक को 2 मरतबा वहाँ से निकाला गया था, यानी कि आपके कब्र मुबारक से। बेहिंद दफन वयो हो, दूसरी जगह पर दफन किया गया था। मतलब पहले वो दरिया के करीब ही दफन थे, तो वहाँ से निकाल कर कहीं और जगह, दूसरी जगह दफना दिया था, क्योंकि सैलाब आ गया था। पानी का मतलब होता है सैलाब, सबब का मतलब होता है वजह से। बफेरा का मतलब होता है 2 मरतबा। बेहिंद का मतलब होता है दूसरी जगह। हिंद का मतलब होता है जगह। दफनाया वयो आहे का मतलब होता है दफनाया गया था। मौजूदा मकबरो संदस दफन थियण जो टियून हिंद आहे। मौजूदा मकबरा जो है आपके दफन करने की तीसरी जगह है। टियून का मतलब होता है तीसरी, हिंद का मतलब होता है जगह, आहे का मतलब होता है बढ़िए है। मखदूम साहब जे मज़ार ते हर महीने पहिरीं सूमर रात जो मेलो लगंदो आहिनि। मखदूम साहब के मज़ार पर, ते का मतलब होता है पेरे पर, हर महीने पहली सूमर, मतलब पहरी का मतलब होता है पहली, सूमर का मतलब होता है पीर का दिन, सूमर कहते हैं पीर के दिन को, पीर की रात को मेला लगता है। सूमर रात मतलब पीर की रात को मेला लगता है। जिते सजी रात समा ज़िक्र वाइज़ एंड नसीहत मां गुजरंदे आहें। जहाँ जो है जिते का मतलब होता है जहाँ, सजी रात मतलब सारी रात, समा ज़िक्र और वाइज़ और नसीहत में गुज़रती है। रजब जे महीने ऐं ज़ुल्हज जी पहिरीं सूमर ते वॾा मेला लगंदा आहिनि। रजब के महीने और ज़ुल्हज के पहली सूमर पर, यानी कि पहले पीर के दिन
बड़ा मेला लगता है, यानी कि हर महीने के पीर के दिन पहली जो पीर पहला जो मतलब हफ्ते में पहला जो पीर आता है तो वो जो है वहाँ पे मेला लगता है, और ख़ास तौर पर रजब और ज़िलहज के महीने में भी लगता है। इन करे शहर में ॾाढी रौनक लगी वेंदी आहे, इसलिए शहर में बड़ी रौनक लगी होती है। ऐं वापार जाम हलंदो आहे। वापार कहते हैं तिजारत को, और तिजारत यानी कि कारोबार, जाम मतलब बहुत ज़्यादा चलता है। हलंदो आहे का मतलब होता है चलता है। नेक्स्ट है हेठियन सवालन जा जवाब लिखो। 3 सवाल इनके जवाब देने हैं। फिर है हेठियन लफ्ज़न जे मायने लिखो, इन जुमले में कमाड़ियो, इनके मीनिंग्स भी लिखने हैं और जुमले भी बनाने हैं। नेक्स्ट है हेठियन जुमलन के नाकारे जुमला में बदलायो, मतलब कि ये जो है लिखे हैं पॉजिटिव जुमले हैं, हमें इन्हें जो है नेगेटिव में बनाने हैं। ये सादे जुमले हैं, हमें इनके इनकारिया जुमले में बनाने हैं। सॉरी, ये जो है पॉजिटिव नहीं है, ये सवालिया जुमले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल का निशान भी लगा हुआ है, और हर जुमले में छा 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 का मतलब होता है क्या। मैंने देखा नहीं था ठीक से, तो इसलिए रिपीट कर रही हूँ। ये जो है सवालिया जुमले हैं, हमें इन्हें नेगेटिव जुमलों में बदलना है, इनकारिया जुमलों में बदलना है। ये सवालिया जुमले हैं। आप इस निशान से क्वेश्चन मार्क से भी अंदाज़ा लगा जा सकता है, और यहाँ पे लिखा हुआ ये कॉपी में किए आपको समझा दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है मखदूम नूर जो असल नालो चा आहे। मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या है? मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह जो असल नालो मखदूम नेमतुल्लाह हो। मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मखदूम नेमतुल्लाह था। हिन ते नूह नालो कीअं पियो? इन पर नूह का नाम कैसे लगा, कैसे पड़ा? मखदूम साहब जे वालिद के हिक अल्लाह वाली फ़कीर नूह होतियाणी जी दुआ सां ही फ़र्जंद अता थियो हो। मखदूम साहब के वालिद को एक अल्लाह वाले फ़कीर जिनका नाम नूह होतियाणी था, उनके दुआ से ही अल्लाह ताला ने फ़र्जंद अता किया था। इन फ़कीर जी वसियत मौजिब मखदूम नेमतुल्लाह पंहिंजे पुट के नूह जे नाले सां सड़ियो। इसी फ़कीर की ही वसियत के मुताबिक मखदूम नेमतुल्लाह ने अपने बेटे को नूह के नाम से बुलाया। दीन जी तबलीग लाए मखदूम साहब केड़ो बंदोबस्त कयो हो? दीन की तबलीग के लिए मखदूम साहब ने कैसा बंदोबस्त किया? दीन इस्लाम जी तबलीग लाए मखदूम साहब इहो बंदोबस्त कयो त पंहिंजनि ख़लीफ़नि के सिंध जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि मां पकेड़े छॾियो हो। दीन इस्लाम की तबलीग के लिए मखदूम साहब ने ये बंदोबस्त किया कि उन्होंने अपने खलीफ़ों को सिंध के मुख़्तलिफ़ हिस्सों में पहला दिया था। संदस मुरीदन में केतराई करामत एन विलायत जा साहब थी गुजरिया आहिन। आपके मुरीदों में कितने ही करामत वाले साहिब करामत और साहिब विलायत गुजरे हैं। नेक्स्ट था कुछ लफ्ज़ थे, इनके मीनिंग भी बताने थे और जुमले भी बनाने थे। कामिल, कामिल का मतलब होता है मुकम्मल। मोमिन जो ईमान कामिल हुंदा आहिन, मोमिन का ईमान मुकम्मल होता है। अता का मतलब होता है इनायत। अल्लाह ताला इंसान लाए बेशुमार नेमतों अता कियोन व्योन आहे। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें अता की हैं। यहाँ पे नून लगाना मैं भूल गई थी, व्योन होगा। फ़हम का मतलब होता है अकल। फ़हम अल्लाह जे तरफ़ा एक वड्डो नेमत आहे, यानी कि अकल अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है। वाइस का मतलब होता है तारीफ़ बयान करना। मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह जे मज़ार ते हर सूमर जी रात ते वाइस हूंदी आहे। हर महीने जी पहिरीन सूमर, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, अभी ठीक हो गई है। मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह जे मज़ार ते हर महीने जी पहिरीन सूमर जी रात ते वाइज़ हूंदी आहे। मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हर महीने के पहली सूमर यानी कि पहला जो है मंडे का दिन पहला, उसमें जो है उसकी रात को वाइज़ होती है और मेला लगता है। समा का मतलब समाई होता है। मज़ारन ते मेलन मां सूफ़ी कलाम समा बांधी छड़ींदो आहे। मज़ारों पर मेलों में सूफ़ी कलाम जो है समा बांध देते हैं। नेक्स्ट था कुछ सवालिया जुमले थे, उनको हमें इनकारिया जुमलों में यानी कि नेगेटिव जुमलों में बदलने थे। शुरू करते हैं। चा तू कराची विंदिस, क्या तुम कराची जाओगी? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, और चा का मतलब होता है क्या, तो इसको
नेगेटिव बनाना है। तू कराची कोना वेंदिस, तुम कराची नहीं जाओगी। कोना का मतलब होता है नहीं। हु ख़त लिखी रहो आहे चा, वो ख़त लिख रही है क्या। हु ख़त कोना लिखी रहो आहे, वो ख़त नहीं लिख रही है। अहमद घर आहे चा, अहमद घर में है क्या। अहमद घर कोना आहे, अहमद घर में नहीं है। तुके पैसा गुरजन छा, तुम्हें पैसे चाहिए क्या। तुके पैसा कोना गुरजन, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए। गुरजन का मतलब होता है चाहिए। इस चैप्टर का खुलासा है। खुलासो इन सबक जो खुलासो इहो आहे त इन सबक मां मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह जी हयाती जे हालात बाबत मुख्तसर बुधायो वियो आहे। इस सबक का खुलासा ये है कि इस सबक में मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हालात के मुताबिक हालात के बारे में मुख्तसर बयान किया गया है। हयाती का मतलब होता है ज़िंदगी, बाबत का मतलब होता है बारे में। त संदस असल नालो मखदूम लुत्फ़ुल्लाह एंड संदस वालिद जो नालो नेमतुल्लाह हो, कि उनका असल नाम मखदूम लुत्फ़ुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद का नाम मखदूम नेमतुल्लाह था। मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह 1911 हिजरी में जाओ हो। मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह 911 हिजरी में पैदा हुए। संदस शुरुआती तालीम एक कामिल उस्ताद मखदूम अरबी वठां हासिल कई। आपने शुरुआती तालीम यानी इब्तदाई तालीम एक कामिल उस्ताद मखदूम अरबी से हासिल की। मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह पाक व हिंद जो पहरियून आलिम हो। मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह जो है बरसगीर पाक व हिंद के पहले आलिम थे, जैं फ़ारसी ज़बान में कुरान मजीद जो तर्जुमो कयो ऐं दीन इस्लाम जी तबलीग लाए कम कयो। जिन्होंने फ़ारसी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए काम किया। मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह 998 हिजरी में वफ़ात कई। मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह ने 998 हिजरी में वफ़ात पाई। संदस जिस्म के दरिया जे पाइण सबब ब पेरा संदस मदार मां बाहिर कड़े बे हन दफनायो। आपके जिस्म को दरिया में सैलाब आने की वजह से 2 मरतबा मज़ार से बाहर निकाल कर दूसरी जगह दफनाया। संदस दरगाह हाला नवामा आहिन, आपका दरगाह मुबारक नए हाला में है। मखदूम साहब जे मज़ार ते हर महीने पहिरीं सूमर जी रात जो मेलो लगंदो आहे। मखदूम साहब के मज़ार पर हर महीने की पहली सूमर यानी कि पहले पीर के दिन की रात को मेला लगता है। ऐं रजब ऐं ज़ुल्हज जी पहिरीं सूमर ते वड्डो मेला लगंदा आहे। और पहली जो है ज़ुल्हज की पहली सूमर यानी कि पहली जो है पीर के दिन और रजब के पहले पीर के दिन बड़ा मेला लगता है, जिन सां शहर में ॾाढे रौनक लगी वेंदी आहे, जिससे शहर में बड़ी रौनक लगी होती है। ऐं वापार जाम हलंदो आहिन और कारोबार बहुत ज़्यादा चलता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।